Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on banking ethics, changing dynamics. ठीक है. Before moving towards our session, quickly discuss कर लेते हैं एक बारी highlights of our course. As you see on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our classes is in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15. And these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application. The link is given in the description box below. And thereafter, you have to enroll yourself under the course. And my friends, take the benefit of 1 rupee offer. Under this offer, you will be getting 360 question in total. 124 PPB, 124 AFP and 124 LRAB. So, with the help of these questions, analyze your performance and grasp the offer. The offer is available at the application. So, firstly, you have to download the application. And my friends, do join our Telegram group on daily basis. We are sharing an information that we think important from exam point of view, and you will get to know the notifications about our upcoming video in that particular group. Before the exam, if we are conducting mega classes, you will get to know in that particular group. Do join that group. The link for the group is given in the description box below. Then third question is, which of the following statement best describe the role of ethics in technology? तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा है ना स्टेटमेंट फॉर्म में है. ओके पहले आप अटेम्प्ट ही कर लो ये क्वेश्चन को कि आपको क्या लगता है कि हाँ कि टेक्नोलॉजी के केस में कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी तो क्या क्या आपको एथिकली चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है. ठीक है कि आप अपने एंड के ऊपर कि आपको जितना अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा रिलेट कर पा रहे हो आप विद द टर्म्स ऑफ एथिक्स मॉरल्स वैल्यूज कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए. तो वो उसको ध्यान में रख के पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एक बार के लिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. So statement 1 is basically what? Bank's primary moral obligation is to ensure against data leak and data misuse. For this, they must capture data and information. Okay, मैं minimize कर देती हूँ. ज़्यादा minimize हो गया. ओके सो आपने यहाँ पे बताना है बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एथिक्स इन टेक्नोलॉजी. फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? बैंक्स प्राइमरी मॉरल ऑब्लिगेशन इज टू इंश्योर अगेंस्ट डेटा लीक एंड डेटा मिसयूज. फॉर दिस दे मस्ट कैप्चर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर सो दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ कस्टमर इज इंश्योर्ड. क्या ऐसा चीज होती है? रेगुलेटरी एक्शन में इंक्लूड डिस्क्लोजर फ्रॉम लाइट टच रेगुलेशन एंड सुपरविजन to a tight regulation and full-fledged supervision. Bank's IT department personnel should be monitored to ensure that they do not capture and transmit bank customers' data. Option D is all the above. So what according to you will be the correct answer for question third? कि हाँ ये चीज़ें हैं या सारी हैं या कोई एक आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो ये रिलेशन में क्या है क्वेश्चन के रिलेशन में करेक्ट है. डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड. अभिजीत सर एंड अमित सर का आंसर आया है दैट इट्स ऑप्शन डी. ओके बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा. अगर मैंने आपको बोला ना कि एसेट की तरह काम करा अभी डेटा है ना जो कस्टमर का डेटा है, तो अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है डेफिनेटली आपने जब डेटा को कलेक्ट किया है आपने उसको कन्वर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया सो दैट यू विल बी एबल टू टेक सम डिसीजंस दैट विल अल्टीमेट इफेक्ट योर ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस है ना. जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको इफेक्ट करेगी वो चीज़. तो वो जो आपने डेटा लिया वो जिस पर्पस के लिए लिया डेफिनेटली ये आपको एथिकली वो जो डेटा है वो वही पर्पस के लिए यूज़ करना है. आप अपने बेनिफिट के लिए वो जो डेटा है कस्टमर का उसको मिसयूज नहीं करना. ये रोल ऑफ एथिक रहेगा ना. दैट्स वाई ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. ऑप्शन बी इज पहले क्या था? पहले था कि आपने लाइट टच रेगुलेशन एंड सुपरविजन मतलब अगर मतलब स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशन अगर जो भी हैं डिस्क्लोजर के रिलेशन में ठीक है इनको इतना स्ट्रांगली नहीं हैंडल किया जाता था है ना कि अगर नहीं भी हो रहा कोई है ना रूल्स एंड रेगुलेशन फ्लॉ कर रहा है कोई भी नहीं भी रूल कोई फॉलो हो रहा तो ठीक है इट्स ओके. लेकिन वो चीज़ को भी कन्वर्ट करना है आपने किस में?
टाइट रेगुलेशन एंड फुल फ्लेज सुपरविजन, कि रूल्स एंड रेगुलेशन भी फुलफिल होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज क्या हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेनलाइज किया जाएगा। एंड फुल फ्लेज सुपरविजन, सुपरवाइजरी बॉडी विल बी देयर, कि जो एक्शंस जिस अकॉर्डिंग बोलेंगे क्या उसके अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये चीज आपने इंश्योर करनी है। देन बैंक्स आईटी डिपार्टमेंट, जो बेसिकली आईटी पर्सोनल डिपार्टमेंट जो बेसिकली हैंडल कर रहा है जो भी कस्टमर का डेटा, उनको इन्फॉर्मेशन है, देयर माइट बी चांसेस कि वो इसका मिसयूज कर सकते हैं, तो ये इंश्योर करना, सुपरविजन प्रॉपर रखनी कि वो जो कस्टमर का डेटा है, वो जो पर्सोनल है, उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। एल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स विल बी देयर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल दी अबव, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ऑप्शन डी बोला है, दे आर करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एथिक्स इन टेक्नोलॉजी। तो बैंक्स हैव अ प्राइमरी मॉरल ऑब्लिगेशन टू एंश्योर अगेंस्ट डेटा लीक एंड डेटा मिसयूज। अगर आपने डेटा लिया है कस्टमर का, डेफिनेटली आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव नहीं बोलूंगी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो डेटा को संभाल के रखना है, उसका मिसयूज ना हो। बैंक मस्ट एंश्योर दैट कैप्चरिंग ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कैरिड आउट इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, so that anyone can have a sense of trust and faith in the banking system। ट्रस्ट एंड फेथ के ऊपर ही क्या है बैंक्स चलते हैं। अगर मान लो मेरा अगर अकाउंट है किसी बैंक में XYZ में, मेरा ट्रस्ट ही नहीं है, मेरे को लगता है कि नहीं ये तो बैंक कभी भी डूब जाएगा, तो क्या मैं वहां पे पैसा रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी। ऐसे ही XYZ और भी पर्सन होंगे, वो भी नहीं रखेंगे। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट एंड फेथ तभी आएगा जब आपने एथिकली परफॉर्म किया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हो। Then banks IT department personnel should be monitored to ensure that they do not capture and transmit banks customers data which they have access to various businesses for a reward। आपको कई बार है ना कॉल्स आते हैं ना लोन्स के लिए, है ना, XYZ कंपनी से, पर्सन से, आपने उनको अपना फोन नंबर भी नहीं दिया होता, फिर उनके पास आपका नंबर कैसे चला गया? ठीक है, ये इसी तरीके से जहां भी आपने है ना कई बार कोई इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर अपना फिल किया होता है, वहीं से वो जो डेटा है वो क्या करते हैं, सेल करते हैं उनको फॉर अ रिवॉर्ड। ठीक है। देन रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल कंपनी। फिनटेक कंपनीज जो आपका फाइनेंशियल, फिनटेक की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ, इट्स अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके रिलेशन में क्वेश्चन है। फॉर द टाइम बिंग ये जो क्वेश्चन है आपने रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि कौन सी आपका जो हेड है, उन्होंने चेयरमैन थे ये कमेटी के। ठीक है, सो रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, जिनके चेयरमैन थे सुदर्शन सेन, इन 2018 मेड सेवरल रिकमेंडेशन, सम ऑफ विच आर। ठीक है, कि क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि आपने किस तरीके से प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है, या क्या क्या आपने जो चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, रिपोर्ट किन्होंने सबमिट की, सुदर्शन सेन ने 2018 में। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो इनका क्या था, जो मेन की हाइलाइट्स हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जो मेन की हाइलाइट्स हैं उनको मैंने ऑप्ट किया यहाँ पे। सो रेगुलेटरी एक्शन में इंक्लूड डिस्क्लोजर टू लाइट टच रेगुलेशन एंड सुपरविजन, टू टाइट रेगुलेशन एंड फुल फ्लेज सुपरविजन डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इम्प्लीकेशन। तो ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, ये कौन सी किन्होंने रिकमेंड किया था? सुदर्शन सेन से रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग ने। Then need to develop more detailed understanding of risk if any kind of risk is associated। तो उसके ऊपर आपने क्या है, डिटेल एनालिसिस करना है कि किस तरीके से आप, अगर इन केस आपने वो फेस किया, तो किस तरीके से आप वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ठीक है। Then next question is relating with guideline on information security, electronic banking technology, risk management and cyber fraud issued by whom? Reserve Bank of India, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको क्या लगता है कि ये रिलेशन में जो गाइडलाइंस रहेंगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेशन में आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट, साइबर फ्रॉड के रिलेशन में कि अगर ये चीज़ हुई तो आपने किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे? RBI की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज व्हाट? एक बार के लिए अटेम्प्ट करो क्वेश्चन 4 एंड उसके बाद हम थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, तो इट्स ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए, है ना। टेलीकॉम लगता ही है हमें देखने पे कि क्वेश्चन इज अबाउट दैट, तो इट्स अ ट्राई, है ना। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रहेगी वो इसके पीछे रहेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। इट्स ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए, है ना। तो पहले डिस्कस करते हैं हम थोड़ा ये डिटेल में, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आएंगे।
तो डेटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी के रिलेशन में है ये टॉपिक बेसिकली। The compliance related to data security and privacy has to be the top priority। ये जो सारी चीज़ें की आपने कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद व्हाट, दे आर एसोसिएटेड विद डेटा प्रिवेसी, है ना, यही चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ना। तो तभी हमने वो कॉन्सेप्ट अभी पहले डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आएंगे। So compliance related to data security and privacy has to be the top priority of the top management and internal audit team of any bank. Bank need to have a very strict internal control system to ensure that the fintech companies adhere to the established internal procedure and compliance, कि जो rules and regulations हैं उसके according ही वो companies जो हैं आपका financial technological जो companies हैं वो काम करें। Banks need to ensure that staff personnel have appropriate level of integrity, awareness and capability। I hope so आपको तीनों वर्ड क्लियर है यहाँ पे, integrity भी, awareness and capability, to ensure the compliance and privacy of banking data। Then RBI provided guideline on information securities, electronic banking, technological risk management and cyber fraud to all commercial banks। सो क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट, कि अगर आपने ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, ये चीज़ से आप फेस कर रहे हो, सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट आर द गाइडलाइंस, कि आपने इस अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपने ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ये वाली चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, द गाइडलाइंस आर गिवन बाय होम, द गाइडलाइंस आर गिवन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, So what will be the correct answer for question 4? अभी attempt कीजिए and let me know the correct answer for question 4. So it's option A, ठीक है, everyone now it's saying that it's option A. Option A will be the correct answer for question 4. It's a Reserve Bank of India. Then next is dash involves enforcement of security policy affecting use of digitally encoded material, digital rights management, technological risk management, information security, none of the above. What according to you will be the correct answer for question 5th? Dash involves enforcement of security policy affecting use of digitally encoded material, that is known as digital rights management, technological risk management, information security and none of the above. So Abhijit sir is saying that it's option A, Ravi sir is saying that it's option B, it's a technological risk management. ओके, तो यहाँ पे एक टॉपिक है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एंड उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो द टॉपिक इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली है क्या, डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल दैट इज कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू बिट्स। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपने डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज डिजिटाइजेशन, ठीक है, मीनिंग क्लियर रखिएगा डिजिटाइजेशन का। डिजिटल राइट मीन्स असेस एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इन द डिजिटल फॉर्मेट। राइट का मतलब क्या रहता है कि आपका वो चीज़ के ऊपर क्या है होल्ड है, राइट है कि हाँ आप ये चीज़ को कर सकते हो। तो जिस पर्सन के पास राइट है कि जो भी आपका डिजिटल फॉर्मेट में डेटा पड़ा है आप उसको ले सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके डिजिटल राइट्स। डिजिटल राइट मीन्स असेस एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इन द डिजिटल फॉर्मेट। ओके, अभी एक वर्ड आ गया डिजिटल राइट मैनेजमेंट। सबसे पहले आपने डिजिटाइजेशन का मीनिंग देखा, देन डिजिटल राइट क्या रहता है। अभी हम थर्ड वाइडर टर्म के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। So digital right management involve enforcement of security policy affecting use of digitally encoded material specified by a content owner on computer not in the physical control of the content owner। मतलब जो डेटा कंप्यूटर में सेव है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, उसके रिलेशन में जो आपने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई कि हाँ कि कौन वो डेटा को असेस कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे हैव टू फॉलोड, अगर ये लूप होल्स रहेंगे तो ये एक्शन लिया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें आप करोगे दैट थिंग्स कम अंडर डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ठीक है।
द वर्ड डिजिटल राइट इज क्लियर टू यू? डिजिटल राइट मैनेजमेंट, आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गया हो। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेगा कि डिजिटल राइट मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। स्टेप बाय स्टेप करके जब आपने चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे कि ये जो टर्म है ये बेसिकली किसके आसपास घूम रही है, ठीक है। आई होप सो अभी आपको मीनिंग क्लियर हुआ हो यहाँ पे डिजिटल राइट मैनेजमेंट का। एंड की एलिमेंट क्या है डिजिटल राइट मैनेजमेंट के? सो की एलिमेंट ऑफ डिजिटल राइट मैनेजमेंट आर लाइसेंसिंग एंड एनफोर्समेंट। लाइसेंसिंग बेसिकली क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग प्रोटेक्टेड बिट्स। बिट्स बेसिकली क्या है? जो आपका डेटा पड़ा है ना कंप्यूटर में रीडेबल फॉर्म में, दे आर नोन एज बिट्स। इट इज अ प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग प्रोटेक्टेड बिट्स विद सिक्योर एंड अनफॉर्जिएबल, मतलब कोई फेक साइन वगैरह करके वो डेटा को असेस ना कर ले, वो बिट्स को असेस ना कर ले, इस तरीके का आपने सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इंश्योर किया है। इट्स अनफॉर्जेबल टर्म्स ऑफ यूसेज डिजिटल लाइसेंस यूजेबल ओनली बाय ऑथेंटिकेटेड यूजर एंड एनवायरनमेंट। मतलब जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि हाँ वो ये जो डेटा है उसको असेस कर सकता है, जो टर्म्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसने यूज़ करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड बंदा यूज़ कर रहा है, ही इज़ प्रोवाइडेड अ लाइसेंस कि हाँ कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप ये जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हो। देन सेकेंड जो यहाँ पे आपका एलिमेंट है दैट इज एनफोर्समेंट। It is the process of ensuring that the use of digital work adhere to enumerated use, privacy, operating restrictions stated in the digital license। मतलब जिस अकॉर्डिंग आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि लाइसेंस में कि आपने इस अकॉर्डिंग जो है काम करना है, एनफोर्स करवाओगे उसी अकॉर्डिंग काम को, ओवर एंड अबव तो नहीं रहेगा। तो जिस अकॉर्डिंग आपको जो लाइसेंस इशू किया गया, आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे हैं कि ये आपका काम है, तो ये जो सारा पार्ट रहेगा ये आपका किसका है? दैट इन्वॉल्व अंडर एनफोर्समेंट। तो दो जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा और डिजिटल राइट मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज लाइसेंसिंग एंड सेकेंड वन इज एनफोर्समेंट। ओके, तो अटेम्प्ट करो अभी क्वेश्चन को एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th। डैश इन्वॉल्व एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी अफेक्टिंग द यूज ऑफ डिजिटली एनकोडेड मटेरियल। इट इज डिजिटल राइट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो जहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगी दैट इज नोन एज डिजिटल राइट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी पॉलिसी इन रिलेशन टू डिजिटल एनकोडेड मटेरियल that is known as digital right management. Option A will be the correct answer for question 5th. Okay.